Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about consumer promotion methods and traders promotion methods of sales promotion. We know these are the two elements which affect the sales of an organization. So we took measures, or we took initiative. We determined some methods to increase the sales of the organization. Basically, there are two types of method: the consumer promotion method and sales trader promotion method on the basis of objective. In today's class, we are discussing about importance of sales promotion. It simply means कि अगर हम sales promotion adopt करते हैं तो what are the advantages to the organization? The first is increase in effectiveness and increase in effectiveness of advertisement and personal selling. As you know, we see advertisement on regular basis, like through media like TV, FM, radio, newspapers, wall painting, electric signboard. There are so many methods of advertisement. But advertisement कब effective होगा? When we offer some initial incentives to the customer and incentive to the trader. So basically, sales promotion helps in effectiveness of advertisement and personal selling. Personal selling mean कि रिटेलर जो सेल कर रहा है कंज्यूमर को, उसे उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी. Is it clear everyone? As we can see in the book, sales promotion techniques like price discounts, sales competition, free samples, gift, coupon, scratch card motivate the consumer to rush themselves and push to the trader's point and demand for products. Due to this, the seller do not need to convince, resolve consumer grievance or motivate consumer to purchase their product. कि हमें बार बार कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि जो हमने सेल्स प्रमोशन के मेथड्स अडॉप्ट किए हैं उससे कंज्यूमर अपने आप गुड्स खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन सेल्स. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन इज टू इंक्रीज इन सेल्स. तो समझाने की ज़रूरत है ही नहीं. when we are giving incentive to the consumer and trader, then they encourage to customer encouraged to purchase the goods and trader encouraged to sell the goods. Sales promotion includes distributing free samples, coupons, organizing fashion shows, offering discounts, various competitions. This lead to increase in trust of consumer. इससे कंज्यूमर का ट्रस्ट होता है और इसी की वजह से दिस लीड्स टू इंक्रीज इन ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर फॉर द ब्रांड एंड दे आर मोटिवेटेड टू परचेज मोर प्रोडक्ट्स विच लीड टू इंक्रीज इन सेल. और इसकी वजह से हमारी सेल इंक्रीज हो सकती है. द नेक्स्ट इज अचीविंग सक्सेस इन कॉम्पिटिशन. द प्रेजेंट सिनेरियो इज अ कॉम्पिटिटिव वन. In such an scenario era, the roles of sales promotion is very important. As we know, there are large number of sellers available in the market. They are providing substitute goods with a greater compatibility. कि बहुत सारी compatibility होती है, competition हमें face करना होता है. So in this case, if you want to grow, if you want to face competition, then we have to give effective. Then we have to do sales promotion for effective sales. The present scenario is competitive in such era. The role of sales promotion is very important. By using different ways of sales promotion, the organization can achieve a competitive edge over other. इससे दूसरों को फायदा मिल जाता है. Next is increase in goodwill. Sales promotion. ठीक है. देखो, हम पहले कस्टमर के बिजनेस के दोनों के पॉइंट से पढ़ रहे हैं कि सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हेल्प्स द ब्रांड इन बिकमिंग पॉपुलर एंड विन अ लॉट ऑफ कंज्यूमर्स. कि अगर हम बात कर रहे हैं सेल्स प्रमोशन की, तो जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक है इससे हमारे ब्रांड को पॉपुलर होने में हेल्प मिल जाती है, जिससे कि विन अ लॉट ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो जाते हैं. दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीज्ड गुडविल. और इसकी बदौलत हमारी गुडविल भी इंक्रीज हो जाती है. इंक्रीज इन द नॉलेज एंड ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर.
If we are doing sales promotion, we are organizing contest, giving free samples, demonstration of goods, which also increase the knowledge and trust of consumer. Sales promotion techniques by using various incentives helps consumer gain information about quality, helps consumer gain information about quality and uses of the product. कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है ये कंज्यूमर को पता लग जाती है, ठीक है। कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है ये कंज्यूमर को पता लग जाती है। एंड यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। एंड डेवलप ट्रस्ट फॉर द प्रोडक्ट्स, अगर वो सैम्पल्स देते हैं, फ्री डेमोन्स्ट्रेशन, फ्री टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो हमारे प्रोडक्ट के लिए ट्रस्ट भी बन जाए। एंटरिंग न्यू मार्केट, ध्यान से समझना बेटा। न्यू मार्केट मीन्स न्यू डायमेंशन, ठीक है। एक और नया डायमेंशन आपके बिजनेस के लिए जहां फिलहाल हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे। तो बेसिकली अगर हम बात करें जब कोई नया प्रोडक्ट एंट्री लेता है तो वो अनस्टेबिलिटी होती है, वहाँ उसको स्टेबिलिटी नहीं होती। सो व्हाट शुड वी डू इन दिस केस, क्या करें इस केस में बताओ। एक सिंपल सी चीज़ कही गई है, क्या कि इन दिस केस वी हैव टू डू सेल्स प्रमोशन। लाइक नई नई जो कंपनी आती है वो स्टेबल होने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल जियो कंपनी ने अप्रॉक्स 1 ईयर के लिए 4G डेटा फ्री दिया था, नई नई सिम्स डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, सेल्स प्रमोशन किया। तो आज हम देखते हैं कि नई मार्केट में जियो कंपनी की एंट्री। रिलायंस एंड जियो दोनों अलग अलग कंपनीज है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें हमें, ठीक है। सो बाय वे ऑफ सेल्स प्रमोशन वी कैन ईजिली एंटर इन द न्यू मार्केट, ठीक है। मार्केट में एंट्री भी होगी, सेल्स भी इंक्रीज होगी और हम स्टेबल भी हो जाएंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रॉफिट। जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि बात ये हो रही है हमारी कि इफ वी वांट टू इंक्रीज इन सेल देन वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। इफ वी इंक्रीज द प्रोडक्शन देन इकोनॉमी इन कॉस्ट, दैट मीन्स कि कॉस्ट रिड्यूस होगी, हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, इफ वी आर इंक्रीजिंग द सेल, इफ द सेल इंक्रीजेज, अगर सेल इंक्रीज होती है दैट मीन्स कि हम लोग और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। कंज्यूमर्स आर मोटिवेटेड टू परचेज मोर प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज सेल्स एंड ऑल्सो इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। कि बेनिफिट ये होता है कि हमारी सेल इंक्रीज होती है और हमारी डिमांड, बढ़ती हुई डिमांड को भी हम पूरा कर सकते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, लार्ज स्केल लीड्स टू इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हम लोग करते हैं तो बेनिफिट ये होता है कि हमारी जो कॉस्ट होती है वो मिनिमम हो जाती है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही हमारी कॉस्ट भी कम होगी। बेटर फैसिलिटीज टू मिडिल मैन। जस्ट फॉर एन, अब देखो ध्यान से समझना कि मिडिल मैन इज अ पर्सन who provide a chain or link between manufacturer and consumer, that is wholesaler and retailer. So sales promotion techniques provides help, financial support, credit facilities to the traders and consumers, wholesaler and retailers. Under the sales promotion techniques, producer provides various facilities to the middleman like advertisement from retailer side, retailer की तरफ से एडवर्टीजमेंट कर देना, retailer का जो खर्चा होगा एडवर्टीजमेंट का वो सेव हो जाएगा। एंड डेकोरेशन ऑफ शॉप, वीवो ओप्पो के एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, फ्री गुड्स एंड गिफ्ट्स एटसेट्रा, ठीक है। कि अगर आप सेल वगैरह इंक्रीज कर रहे हैं तो हम हमारी तरफ से फ्री गिफ्ट वगैरह भी होलसेलर रिटेलर्स को दे देंगे। Is it clear everyone? And the last point of importance is improvement in living standard. Consumers are getting new and qualitative products on competitive prices. कि कंज्यूमर को सबसे बड़ी बात ये है
कि कम प्राइस पर क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे, एंड विथ वेरियस प्रमोशनल स्कीम, अलग अलग स्कीम्स के साथ, ठीक है। इट इंक्रीजेज परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। इससे भाई सिंपल सी बात है, कम प्राइस पर ज़्यादा गुड्स खरीद पाएंगे तो परचेजिंग पावर भी इंक्रीज होगी कंज्यूमर की, विच रिजल्ट्स इन वेराइटी परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, जिससे कि वो अलग अलग तरह की गुड्स परचेज कर सकता है। वेराइटी एंड न्यू प्रोडक्ट्स कंजप्शन इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड, और इससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है। सो 7th चैप्टर कंप्लीट इन दिस क्लास। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, देखो बेसिकली इस चैप्टर के क्वेश्चंस क्या हैं। अगर 2 मार्क्स की बात करें तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन सेल्स प्रमोशन। सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, ठीक है। एंड पता होना चाहिए मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन में क्या डिफरेंस है। सेल्स प्रमोशन इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस। इज इट क्लियर? देन 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स पूछ सकता है, 6 मार्क्स में ट्रेडर प्रमोशन मेथड्स पूछ सकता है, या इम्पोर्टेंस पूछ सकता है। तो 3 ही टॉपिक है बेसिकली 6 मार्क्स के। ब्लूप्रिंट के हिसाब से 2 + 6 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मतलब 8 मार्क्स के पोर्शन है 6, 7 और 8 चैप्टर्स। सो किसी भी चैप्टर में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो इसमें 3 टॉपिक है 6 मार्क्स के हिसाब से, वही कंज्यूमर प्रमोशन मेथड, ट्रेड प्रमोशन मेथड और इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। स्टूडेंट्स, is it clear? So we have to prepare the definition as well as all the methods of consumer promotion and traders promotion and importance of sales promotion. Is it clear? So students, आज की क्लास यही खत्म करेंगे। थोड़ी शॉर्ट क्लास है क्योंकि टॉपिक खत्म हो गया अपना। Still, if you have got any doubt related to chapter number 7 complete, you can ask through WhatsApp. Thank you students. Stay home, stay safe.